Good morning, students, and welcome to your English online lecture of Standard First. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English of Standard First. So, students, for learning your subject English, I request all the students to open your English Bal Bharti textbook and also to open your Navjeevan term book, your combined book number 1. Okay, students? So, all the students just be ready with your English Bal Bharti textbook. So students, have you all opened your English Bal Bharti textbook? Okay. So students, you can see the image of your English Bal Bharti textbook of Standard 1. Students, this book, those who have not purchased, that students can purchase this textbook from outside shop. This textbook you will not get from the school. This textbook is government textbook, English Bal Bharti textbook. This you need to purchase from outside shop. Okay students, बच्चों मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा है वो बच्चे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक बाहर से शॉप में से खरीदेंगे. ये टेक्स्ट बुक आपको स्कूल में नहीं मिलने वाली है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, let us revise what we have studied in the previous English online lecture. Can you all tell me which poem we have studied? Very good. So students, in our previous English online lecture, we have studied our first poem from Unit 1. The poem was a happy song. I hope that all the students had revised that poem at your home by doing the actions. Okay, very good. And I am very happy that most of the students have sent me the homework also of the poem, and also you all have completed the dictation words. So students, in the same way you all need to practice as you are doing now, so that you will get the good marks in your standard first. Okay, yes. सो बच्चों, हमने हमारे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हमारी फर्स्ट पोएम अ हैप्पी सॉन्ग कंप्लीट किया था, रिवाइज किया था, स्टडी किया था. सभी बच्चों ने उसे घर पे रिवाइज किया. वेरी गुड. ओके, तो बच्चों आज हम हमारा सेकेंड पोएम स्टार्ट करने वाले हैं. आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम पोएम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हमारे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में से. ओके स्टूडेंट्स, so students, you can see the index page here, Unit 1. Okay, now in Unit 1 a first poem name is Happy Song, that we have studied. Now today we are going to study poem number 2, that is Nature. What is the name of the poem? The name of the poem is Nature. Very good. So students, just open your textbook, poem number 2, Nature. So students, just open your textbook page number 2. बच्चों, आपको आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 ओपन करना है और आपके बुक आपके सामने रखनी है, और साथ ही में आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है. ओके, और हर एक वर्ड को समझना है ताकि आप ये पोएम अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर सको. ओके, सो पोएम नंबर 2, द नेम ऑफ द पोएम इज नेचर. Today we are going to study the poem Nature. So students, have you all heard about nature? What is nature? Can anyone tell me what is nature? Yes. Okay. So let me explain you what is nature. तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेचर क्या है? नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति. नेचर
यानी जो आपको गॉड गिफ्टेड हो उसे कहते हैं नेचर। गॉड गिफ्टेड यानी जो गॉड ने क्रिएट किया है, जैसे कि सन, रेन, ट्रीज, फ्लावर्स, वाटर, रिवर, माउंटेन्स, ये सारा गॉड गिफ्टेड है। यस और नो स्टूडेंट्स? बच्चों, इसको क्या मैन ने हमने बनाया है? नहीं, ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, यानी ये गॉड का क्रिएशन है। ये भगवान ने हमें नेचर, जो ट्रीज हम देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, रिवर देखते हैं, वाटर है, ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है। तो ये सारी चीज़ें नेचर की पार्ट है, नेचर का हिस्सा है। ओके, आप मॉर्निंग में सन देखते हो, स्काई, क्लाउड्स, रेनबो, ट्रीज और रिवर, माउंटेन, सॉइल, लैंड, ये सारी कौन सी चीज़ है? ये सारी चीज़ें आपकी आती है नेचर में। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस पोएम नेचर। तो बच्चों, आपको समझ में आया नेचर किसे कहते हैं? यस, नेचर यानी सराउंडिंग में जो आसपास में आपको जो चीज़ें आपके दिख रही है, जो कि गॉड गिफ्टेड है, जो कि भगवान ने बनाई है, जो मैन ने नहीं बनाई है, भगवान ने, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि रिवर, अब रिवर, वाटर को क्या हमने बनाया है स्टूडेंट्स? नहीं। ट्रीज, ट्रीज क्या आपने बनाया है? नो, ओनली व्हाट वी डू, वी सी द seed and the tree grows. Okay, so all these things are God gifted, like clouds, air, water, river, land. This is all a part of a nature. Okay, ये नेचर का हिस्सा है। और आप देखने जाओगे तो नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई गई है, गॉड गिफ्टेड है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। ओके, तो इस पोएम में हम वो सारी नेचर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इस पोएम में आपको बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम नेचर। तो बच्चों, इस पोएम को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप इसे समझ सको। हर एक वर्ड का मैं मतलब आपको समझाऊंगी, और स्टूडेंट्स मैं पिक्चर बताऊंगी ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ पोएम नेचर। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट from our English Bal Bharti textbook. We are studying Unit 1, Poem number 2, Nature. Whenever you start your poem, whenever you learn the poem, always you have to say Unit 1, Poem number 2, Nature, and then you are going to start with your poem. बच्चों, जब आप पोएम लर्न करोगे, सबसे पहली चीज़ आपको कभी भी यूनिट 1 बोलना है। कौन से यूनिट से आप पोएम बोल रहे हो, सबसे पहले आप यूनिट 1 बोलोगे, फिर आप बोलोगे पोएम नंबर 2, द नेम ऑफ द पोएम नेचर, द नेम ऑफ द पोएम इज नेचर। इस तरीके से आपको पोएम की स्टार्ट करनी है। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर बताया है। हियर आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ नेचर। सो in the picture what can you see? You can see a beautiful scenery, a beautiful picture of mountain, water, clouds, trees. This all are the part of our nature. बच्चों, नेचर यानी प्रकृति, जो हमारे आसपास में सराउंडिंग में दिखाई देती है, वो सभी नेचर का पार्ट है। जिस तरीके से इस पिक्चर में बताया है, रिवर यानी नदी, झरने, माउंटेन पहाड़, आसमान, सूरज, चांद, घास, झाड़, पेड़ पौधे, ये सारे नेचर का एक हिस्सा है, सारे नेचर का पार्ट है। तो हमारी पोएम नेचर के बारे में है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम नेचर।
I hope that you all have understood the meaning of the poem nature, the word nature. तो बच्चों सभी को नेचर समझ में आया? ओके, वेरी गुड. नाउ लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट लाइन, नेचर इज माइट, MIGHT, माइट. ओके, नेचर इज माइट. बच्चों माइट का मतलब क्या है? MIGHT, माइट. माइट यानी बिग, बड़ा. माइट का यानी माइट मतलब बड़ा, बिग, ह्यूज. माइट, द मीनिंग ऑफ माइट इज ह्यूज, बिग. नेचर इज माइट. नेचर को कहा गया है कि नेचर बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है. बड़ा मतलब बहुत ही ह्यूज है. हम नेचर को कोई पार्ट में काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. वी कैन नॉट एस्टिमेट और वी कैन नॉट काउंट द पार्ट ऑफ अ लैंड. Okay, so nature is very huge and might. So in this first line it is said that nature is might. ये पहली लाइन में बताया गया है कि नेचर बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है. यानी हम उसे एस्टिमेट या टोटल नहीं कर सकते कि इतने पार्ट का नेचर है. नेचर काफ़ी दूर तक नेचर है और नेचर बहुत ही बड़ा है. माइट का मतलब है ह्यूज, बिग. ओके, what is the meaning of might? Huge, 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 big. Okay, you can also tell the simple meaning of might is big, BIG, big. Okay, everyone understood this first line? Nature is might means nature is big, nature बहुत ही बड़ा है. आप देख सकते हो स्काई, आप देखते हो, yes or no? तो स्काई आपको छोटा सा दिखता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, स्काई बहुत दूर तक बहुत बड़ा है. माउंटेन्स भी आप देख सकते हो कि बहुत दूर तक है. ट्रीज, रिवर्स काफ़ी दूर तक है. हम उसे एस्टिमेट नहीं कर सकते कि इतना ही नेचर है. नेचर काफ़ी बड़ा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, नेचर इज स्ट्रॉन्ग. हाउ इज़ द नेचर स्टूडेंट्स? नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. STRONG, strong. Students, what is the meaning of strong? बच्चों, strong का मतलब क्या है? पावरफुल. वेरी गुड. स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, पावरफुल. पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग. आप स्ट्रॉन्ग हो, येस और नो? आप मिल्क पीते हो ना स्टूडेंट्स, तभी आपको क्या होते हो? मिल्क पीने से आप क्या होते हो? स्ट्रॉन्ग होते हो. उसी तरीके से हमारा नेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. आप देख सकते हो किस तरीके से स्ट्रांग होगा बच्चों नेचर. हाउ कैन यू टेल दैट नेचर इज स्ट्रांग? आप कैसे बोल सकते हो कि नेचर हमारा बहुत स्ट्रांग है? यस, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेचर हमारा स्ट्रांग कैसे है. तो स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि नेचर हमारा सीज़न वाइज रहता है. कभी रेन होता है, कभी विंटर होता है, कभी समर सीज़न होता है. आप नेचर यानी स्काई में आप देख सकते हो कि लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग यानी बारिश ज़्यादा आती है तो क्या होता है? बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, थंडर आता है, स्टॉर्म आता है, तूफान आता है. तो ये सारी चीज़ें क्या करता है? नेचर कंट्रोल करता है. ये सारा हैंडलिंग पावर किस में है? नेचर में है. ओके, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है. इसीलिए नेचर को कहा गया है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल. ओके, स्ट्रॉन्ग का मतलब है ताकतवर, पावरफुल. जिस तरीके से बच्चों आप स्ट्रॉन्ग हो उस तरीके से हमारा नेचर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो बिजली चमक रही है, येस और नो? तो नेचर को हर एक चीज़, नेचर क्या होता है? सीज़न वाइज हर एक चीज़ नेचर में बदलाव होते हैं. बारिश के टाइम पे आप देखो नेचर का क्लाइमेट चेंज होता है. धूप के टाइम पे अलग होता है, ठंडी के टाइम पे हमारा नेचर अलग होता है. तो ये सारी पावर नेचर में है, कंट्रोलिंग पावर. ओके, इसीलिए नेचर को कहा गया है स्ट्रॉन्ग. दैट इज़ वाई नेचर इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, नेचर इज ब्यूटी. BEAUTY, ब्यूटी. नेचर इज़ ब्यूटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूटी नाउ? बच्चों, ब्यूटी का मतलब क्या है? ब्यूटी यानी सुंदर, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, जिसे हम कहते हैं सुंदर, दिखने में बहुत ही अच्छा, उसे कहते हैं ब्यूटी.
ओके, नेचर इज ब्यूटी। आप जब न्यू ड्रेस पहनते हो, बर्थडे का फ्रॉक पहनते हो, तो आप किस तरीके से लगते हो? प्रिटी दिखते हो, ब्यूटी दिखते हो, यस और नो, ब्यूटीफुल दिखते हो। उसी तरीके से हमारा नेचर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है स्टूडेंट्स। आप इस पिक्चर को देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ये। आप गार्डन जाते हो, फ्लावर्स देखते हो, यस और नो, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आपको देखने मिलते हैं। तो क्या ये फ्लावर्स हमने बनाए हैं? नो, ये गॉड गिफ्टेड है। ये फ्लावर्स अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर्स के हमें देखने मिलते हैं। अलग अलग फ्रूट्स हमें देखने मिलते हैं, टेस्ट करने मिलते हैं। तो ये सब नेचर का ही क्रिएशन है। नेचर के वजह से ही हमें ये सारी चीज़ें देखने मिलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। हम ग्रास देखते हैं, गार्डन्स में अलग अलग टाइप के ग्रासेस होते हैं, यस और नो स्टूडेंट्स? यस। हम रिवर में से देखते हैं, रिवर जब माउंटेन से फ्लो होता है तो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। तो उससे इसीलिए कहा गया है नेचर इज़ ब्यूटी। नेचर को क्या बताया गया है? ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदर। ओके स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट लाइन, नेचर इज मूडी। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूडी स्टूडेंट्स? बच्चों, मूडी का मतलब क्या है? द स्पेलिंग ऑफ मूडी इज MOODY, मूडी। नेचर इज मूडी। अब बच्चों, आप लोग भी आपका मूड चेंज करते हो, यस और नो? यस। आपका अगर फेवरेट फूड रहता है या फेवरेट स्नैक्स रहता है तो आप फटाक से उसे फिनिश कर देते हो, यस और नो? यस स्टूडेंट्स? यस। अगर आपको मैंने चॉकलेट दिया, केक दिया, वेफर्स दिए, चिप्स दिए, तो ये आप फटाक से फिनिश करोगे। आपका मूड वहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, और यही चीज़ अगर मम्मी ने आपको चपाती दी या खाने को दाल राइस दिया तो आप क्या करोगे? जल्दी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको डेली खाना पड़ता है, यस और नो? तो आप अपना मूड किस तरीके से बदलते हो? उसी तरीके से नेचर भी अपना मूड बदलता है, यस और नो बच्चों? यस। तो नेचर अपना मूड कैसे बदलता है बच्चों? तो नेचर, अब कौन सा सीज़न चल रहा है स्टूडेंट्स? विच सीज़न इज गोइंग ऑन? इट इज़ मानसून सीजन। आफ्टर मानसून विच सीजन कम्स? मानसून के बाद कौन सा सीजन आता है? विंटर सीजन। वेरी गुड। आफ्टर विंटर विच सीजन कम्स? समर सीजन। वेरी गुड। तो हमारे 3 सीजन्स होते हैं। तो बच्चों, आप देखते हो कि बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश में भी आप देखो कितने बार धूप में बारिश होती है, यस और नो? मूडी मतलब नेचर का मूड के ऊपर नेचर चेंज होता है। कभी बारिश जोर से होने लगती है, कभी धूप में बारिश होने लगती है, कभी अचानक ठंडी पड़ती है। तो नेचर क्या करता है? अपने मूड के हिसाब से चेंजेस करता है, इसीलिए नेचर को कहा गया है मूडी। नेचर changes climatically, okay? According to the seasons nature change, according to the climate nature change. You can see in this picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्लाउड्स हमें कौन सी चीज़ बता रहे हैं। इस क्लाउड्स को देखते हुए हमें ये भी पता चल रहा है कि रेनी सीजन का क्लाइमेट है। क्लाउड थोड़े ब्लैक है, थोड़ा सा सनलाइट आपको दिख रहा है, येस और नो? सो यू कैन से दैट द summer sun is also there, so it is the climatic change. So your nature is moody, it depends, okay? So nature is said to be moody, okay? It changes as per the choice. तो बच्चों, नेचर को क्या कहा गया है? मूडी। यानी जिस तरीके से आप अपना माइंड चेंज करते हो उसी तरीके से नेचर भी अपना माइंड चेंज करता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है। तो इसी तरीके से नेचर को क्या कहा गया है? मूडी। MOODY, मूडी। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, नेचर इज स्मार्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स? स्मार्ट यानी बच्चों आप स्मार्ट हो? All the students are smart, yes or no? Yes.
Very good. All the kids are smart. As you are in the first standard, students, so you all are smart. Yes or no? No one is dull. All are smart. What is the meaning of smart? बच्चों, स्मार्ट का मतलब क्या है? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उससे आपको पता चलेगा स्मार्ट का मतलब. ओके, स्मार्ट. ओके, जब आप शॉप में जाते हो, मार्केट में, तो पेरेंट्स के साथ जब आप जाते हो तो पेरेंट्स आपको चॉकलेट दिलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ का, और आपका डिमांड क्या रहता है? हाई डिमांड रहता है. आपको बड़ी चीज़ चाहिए रहती है जो ज़्यादा पैसे की हो. येस और नो? इसका मतलब ये आपको कौन सिखा रहा है स्टूडेंट्स? ये आपको कोई बता नहीं रहा है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इससे और महंगी चीज़ या बड़ी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आई है. तो ये हुआ स्मार्टनेस. इसे कहते हैं स्मार्ट. ओके, तो नेचर भी आप लोग की तरह ही स्मार्ट है. आप लोग की तरह क्या है? स्मार्ट. नेचर इज स्मार्ट. SMART, स्मार्ट. सो here the nature is said to be smart. Now the next one, nature is blue. BLUE, blue. बच्चों, नेचर को क्या कहा गया है? नेचर को ब्लू कलर कहा गया है. नेचर को बताया है ब्लू. नेचर इज ब्लू. नेचर को कहा गया है नेचर इज ब्लू. क्यों कहा गया है ब्लू? वाई नेचर इज सेड टू बी ब्लू? Because you can see this picture. Yes, our sky, the color of the sky is blue. Our color of the ocean is, color of the water is blue. Yes or no? Ocean, sea is blue in color. So you can see in our nature we are having the color of the sky blue, the ocean, the water, the color of the ocean is blue. So here nature is said to be blue in color. बच्चों, यहाँ पर ब्लू बताया गया है क्योंकि यहाँ पे हमारा नेचर जो आसमान है, आसमान का रंग कौन सा होता है? नीला, ब्लू कलर. ओशन, ओशन समंदर, जो पानी होता है वो भी कौन से रंग का होता है? ओशन समंदर, ब्लू कलर. इसीलिए हमारे नेचर को कहा गया है नेचर इज ब्लू. ओके बच्चों, students, have you all understood why nature is said to be blue? Nature is said to be blue because of the sky and the ocean that is blue in the color. Nature is green. Now it is said that nature is green in color. बच्चों, अब कहा गया है कि नेचर कौन से कलर का है? नेचर ग्रीन कलर का है. ग्रीन क्यों कहा गया है नेचर को? क्योंकि आपको हर तरफ क्या दिखता है? ट्रीज़ दिखते हैं. ट्रीज़, ग्रास, घास दिखते हैं नीचे. येस और नो? ट्रीज़, पेड़ पौधे दिखते हैं. फॉरेस्ट में आप जंगल में जाओगे, फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे ट्रीज़ दिखते हैं. इसीलिए नेचर को बताया गया है ग्रीन. नेचर इज़ ग्रीन. GREEN, ग्रीन. इसीलिए नेचर का रंग कौन सा बताया है? ग्रीन कलर. ओके, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट, नेचर इज यू, नेचर इज मी. आप भी नेचर हो और हम भी नेचर है. यू का मतलब आप. नेचर इज यू मतलब आप भी नेचर ही हो. और नेचर इज मी, और हम भी, मैं भी नेचर ही हूँ. इस तरीके से यहाँ पर नेचर को कंपेयर किया है. नेचर को कंपेयर किया है आपसे. नेचर इज यू, नेचर इज़ मी. हम सब का हाथ है इस नेचर को और सुंदर और खूबसूरत बनाने में. येस और नो स्टूडेंट्स? येस. हम नेचर को किस तरीके से खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं? नेचर इज़ यू, यानी आप भी इसे अच्छा और सुंदर बना सकते हो और मैं भी इसे अच्छा और सुंदर बना सकती हूँ. किस तरीके से हम बना सकते हैं बच्चों? हम ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. हमें फ्लावर्स को, ट्रीज़ को रोज़ वाटर देना चाहिए. ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करनी चाहिए. तो इस तरीके से हम अपना नेचर सेव भी कर सकते हैं और हम नेचर अपना खुद क्रिएट भी कर सकते हैं. ओके,
नाउ द नेक्स्ट इज नेचर विल फॉरएवर बी फ्री। नेचर को कहा गया है कि नेचर फॉरएवर, FOREVER, फॉरएवर मतलब हमेशा, फ्री यानी FREE फ्री, फ्री यानी मुफ्त। ओके, जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है, तो नेचर हमें फ्री में मिला है। नेचर का हमें कोई, हम नेचर की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। येस और नो बच्चों? यस। आप यहाँ पे इस वर्ल्ड में रह रहे हो, हम इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में रह रहे हैं। हम एक एक पैसे नेचर को देते हैं क्या? नेचर के लिए हम एक एक रुपीस हम देते हैं नेचर को? नहीं। हमें सनलाइट मिलती है तो हम सन को रुपीस देते हैं? नो। वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, सो दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। वी गेट सॉइल, सैंड, येस और नो? मट्टी, हमारी जो मट्टी है, सॉइल है जिसमें हम खेती करते हैं, ये सारी फ्री है। वाटर, you also get water from the river, lakes, so this all are the God gifted things. We do not pay for that. This nature will forever be free, means we are using all the things free. एयर, बच्चों जो हवा चल रही है आप महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो। क्या हम इसे पे करते हैं इस हवा के लिए? जो हम बाहर जाते, जो हमें फ्रेश हवा हमको लगती है, तो क्या हमें उसके लिए पे करना पड़ता है? नहीं। सनलाइट, जो धूप हमें मिलती है, धूप के लिए हमें पे करना पड़ता है? नो, नहीं। तो नेचर फ्री है। नेचर को कहा गया है कि नेचर हमेशा फ्री रहेगा। ओके, आप इसका आनंद हमेशा ले सकते हो। मुफ्त में आप नेचर की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, so here we have completed the poem Nature. So our explanation of the poem is done. I hope that all of you have understood the poem by looking the picture. Okay, now we are going to recite the poem. Poem number 2 Nature. सभी बच्चे मेरे साथ इस पोएम को रिपीट करेंगे। Listen, sing and act. सभी को मेरे साथ बोलना है। नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, नेचर इज ब्यूटी, नेचर इज मूडी, नेचर इज स्मार्ट, नेचर इज ब्लू, नेचर इज ग्रीन, नेचर इज ट्रू, नेचर इज यू, nature is me, nature will forever be free. Okay students? Yes, your nature is true also. Let me explain you this. True यानी सच्चा। नेचर बहुत ही सच्चा है, प्योर है। Okay, so this poem again one time we are going to repeat. We are going to sing. Nature is might, nature is strong, nature is beauty, nature is moody, nature is smart, nature is blue, nature is green, nature is true, nature is you, nature is me, nature will forever be free. It is a very short and easy poem. So students, you all can by heart this poem. बच्चों ये बहुत ही छोटी सी पोएम है जो आप इजीली इसे बाय हार्ट कर सकते हो। तो आपका होमवर्क रहेगा, आपको इस पोएम को क्या करना है? बाय हार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एंड से। यहाँ पे कुछ डिक्टेशन वर्ड्स है, इस डिक्टेशन वर्ड्स को आपको आपके नोटबुक में लिखना है वन टाइम। ओके, NATURE नेचर, MIGHT माइट, STRONG स्ट्रॉन्ग, BEAUTY ब्यूटी, MOODY मूडी, SMART स्मार्ट, BLUE ब्लू, GREEN ग्रीन, TRUE ट्रू, EVER एवर, FREE फ्री. Okay, so these all are the dictation word from the poem you are going to write in your English notebook one time as a homework. आपको ये आपके इंग्लिश नोटबुक में वन टाइम लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। आप जो पिक्चर में देख सकते हो उसके बारे में आपको बताना है। टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। ट्री, फ्लावर एंड बर्ड्स। आपको नीचे पिक्चर दिया है, ट्री के बारे में, फ्लावर और बर्ड्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब किस तरीके से करेंगे बच्चों, आपको बताना है ट्री के बारे में। द कलर ऑफ द ट्री इज ग्रीन। ट्री आर वेरी टॉल। Tree are very strong. Tree gives us fruits and flowers. Now second picture is flower. तो flower के बारे में आप किस तरह से describe करोगे? Flowers are very beautiful. The smell of the flowers are very pleasant. Now the third picture is birds. Birds fly in the sky. Birds are very beautiful. Okay, so here we have completed our poem number 2, nature. You all have to by heart this poem at your home. आपको इस poem को by heart करना है. Okay students, now all the students open your combined book and carry a pencil with you. सभी बच्चे अपना combined book open करेंगे और साथ में पेंसिल कैरी करेंगे। आपके हैंड में पेंसिल होनी चाहिए। अब हम इस कंबाइंड बुक में नेचर के ऊपर नोट्स कंप्लीट करेंगे। ओके, ओपन योर पेज नंबर 3। आपको पेज नंबर 3 ओपन करना है। यूनिट 1 पोएम नंबर 2 नेचर। और लिसन, सिंग एंड एक्ट द पोएम। अभी अभी हमने लिसन, सिंग और एक्ट पोएम किया। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2। Question number 2, look and say. Here are the dictation word that now we have studied. Now let us see the class work. बच्चों अब class work देखेंगे। Question number 1, write the missing letters. अब आपको missing letters दिया है, आपको spelling दी है, उसके बीच के words आपके नहीं है, तो हमें पहले तो spelling को read करना है और missing words complete करना है। First one is NATURE, nature. So students write there NATURE, nature. Second one, free, FREE, free. C, third one, BLUE, blue. Okay, and the last D, BEAUTY, beauty. बच्चों आपको फर्स्ट वाले में लिखना है ए लिखना है, टी के बाजू में आपका जो डैश है वहाँ पे आपको लिखना है यू, NATURE, नेचर। सेकेंड है फ्री, FR, आपको डैश दिया है वहाँ पे ई लिखना है, स्मॉल ई, फ्री, FREE, फ्री। थर्ड वन इज बी के बाजू में आपको लिखना है L, BLUE, ब्लू। And the last one is D, BEAUTY, beauty. Okay, now open your page number 4. Page number 4 is a small activity. Make a list of 3 things you see in the picture. अब आपको इस पिक्चर में कौन कौन सी 3 चीज़ें दिखाई दे रही है। हमें तो बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे थिंग्स दिख रहे हैं, लेकिन हमें 3 चीज़ों का नाम लिखना है। फर्स्ट हम लिखेंगे रेनबो। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू राइट रेनबो। सो राइट द स्पेलिंग ऑफ रेनबो, RAINBOW, रेनबो। सेकेंड वन स्लाइड, SLIDE, स्लाइड। बच्चों हमें रेनबो दिख रहा है, यस। स्लाइड यानी झूला, जो स्लाइड है फिसल गुंडी उसे कहते हैं स्लाइड। एंड द थर्ड वन इज स्विंग, SWING, स्विंग यानी झूला, जो गर्ल झूल रही है उसे कहते हैं स्विंग। तो ये 3 चीज़ों का आपको स्पेलिंग लिखना है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर नोट्स फ्रॉम द पोएम नेचर. You are going to complete this in your combined book, and also you are going to write the dictation words in your English notebook. So students, for your homework you have to write the dictation word one time, and you have to learn the poem nature and complete it in your combined book also. Okay, students, thank you for watching today's online lecture.
Stay connected, stay home, stay safe. Thank you for watching today's online lecture. Have a nice day.